بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران نے سپریم لیڈر کے حکم پر نیوکلیئر سرگرمیاں تیز کر دی، یورینیم کی افزودگی بڑھائی جائے گی۔ خامنائی نے کہا دشمن پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ایک حملہ ہوگا تو 10 حملے کریں گے۔ ایران کے اعلان پر حیرت نہیں ہوئی، نیتن یاہو کا ٹویٹ، کہا نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہوگا۔ نیتن یاہو جرمنی کے بعد فرانس پہنچے، اسرائیل نے کہا تمام ملک ایران کے خلاف اتحاد بنائیں۔ جی سی سی بحران کا 1 سال پورا، قطر نے سعودی عرب کی دھمکیاں رد کر دی، کہا آزادی سے فیصلے کریں گے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے نئے وزیر اعظم کو مقرر کیا، کہا حکومت ناجائز ٹیکس نہ لگائے۔ گواٹےمالا میں آتش فشاں پھٹنے سے مرنے والوں کی تعداد 69 ہو گئی، ملک بھر میں سوگ۔ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں تو سخت جواب دیں گے، پاکستان اور ملیٹنٹس کو نرملا سیتارمن کی وارننگ۔ سنندا پشکر کیس میں ششی تھرور کو ملزم کی حیثیت سے طلب کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ایران نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک نیوکلیئر سائٹ نتانز پر جدید سینٹریفیوجز بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے۔ ایٹامک انرجی آرگنائزیشن نے کہا کہ وہ 2015 میں کی گئی ڈیل میں کیے گئے وعدوں کا احترام کرتے ہوئے یہ کارروائی کر رہی ہے۔ ایرانی ادارے کے چیف علی اکبر صالحی نے تہران میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اس سلسلے میں ایران نے یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے کو بھی خبر دے دی ہے کہ وہ یورینیم پیدا کرنے کی اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کی انرجی آرگنائزیشن کے ترجمان بہروز کمال بندی نے اسنا نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ہم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کو ایک خط بھیج چکے ہیں۔ ہم منگل سے UF6 یورینیم پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھانے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ UF6 سینٹریفیوج بنانے والے را مٹیریل یا خام مال کو کہتے ہیں۔ ایک دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اس سلسلے میں ضروری ہدایتیں دی تھیں۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی کی برسی کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے ایران کی نیوکلیئر ایجنسی سے کہا تھا کہ وہ یورینیم کی افزودگی کے لیے ضروری انتظامات کرے۔ اس بارے میں صفائی دیتے ہوئے ایرانی ادارے کے ترجمان نے کہا کہ سپریم لیڈر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ عمل تیز کرنا چاہیے جو ضرورت پڑنے پر ہماری نیوکلیئر صلاحیتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ خامنائی نے یہ بات دہرائی کہ ایران کے میزائل پروگرام کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کا تعلق ہماری سیکیورٹی اور ہماری طاقت سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر وہ ایک بار حملہ کرے گا تو ہم اس پر 10 بار حملے کریں گے۔ سپریم لیڈر نے تہران میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یورپی ملک ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ایران پابندیوں کا بھی سامنا کرے گا اور اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں بھی چھوڑ دے گا، لیکن میں ان حکومتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت برا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ خامنائی نے کہا کہ دشمن سے نمٹتے ہوئے ایران ہمیشہ اپنی گھریلو صلاحیتوں کو اہمیت دیتا ہے اور دشمن پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کی چالوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور انہیں عوام کے سامنے لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کے خلاف معاشی، نفسیاتی اور عملی قدم ان کی سازشوں کا حصہ ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ جب ایران کو میڈیکل مقصدوں کے لیے یورینیم کی افزودگی کی ضرورت تھی، دشمن نے ایرانی قوم کے راستے میں کئی رکاوٹیں کھڑی کی تاکہ وہ یہ ٹیکنالوجی حاصل نہ کر سکے، لیکن ایران نے دشمن کی چالوں کے باوجود اس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی۔ دنیا کے دبے کچلے لوگوں، خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے ایران کی تائید کا ذکر کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ دبے کچلے لوگوں کی مدد ایران کی ایک خوبی ہے اور ایران ایسے دبے کچلے لوگوں اور قوموں اور مزاحمتی طاقتوں کی مدد کرتا رہے گا۔
2015 की न्यूक्लियर डील के तहत ईरान ने यूरेनियम अफजूदा करने की अपनी सरगर्मियां महदूद कर दी थी। इसके बदले ईरान के खिलाफ बास पाबंदियां हटाई गई थी, लेकिन हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला किया। इसके बाद भी यूरोपीय लीडर्स वादा करते रहे हैं कि वो ईरान के साथ तिजारती सरगर्मियां जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी मानी कि ये काम इतना आसान नहीं है। ईरानी ओहदेदारों ने इससे पहले धमकी दी थी कि अगर यूरोपीय मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील को बरकरार रखने में नाकाम रहते हैं तो ईरान के सामने कई रास्ते हैं, जिनमें 20% यूरेनियम की अफजूदगी भी शामिल है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यूरेनियम अफजूदा करने के ईरान के ऐलान पर इसराइल को हैरत नहीं हुई है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना होगा। नेतन्याहू ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि वो रियासत इसराइल को तबाह करने का इरादा रखते हैं। कल उन्होंने कहा कि वो किस तरह इसराइल को तबाह करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी का हुक्म दिया। नेतन्याहू ने फ्रांस पहुंचते हुए ये बात कही। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने एक बार फिर ईरान न्यूक्लियर डील का बचाव किया है। उन्होंने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करते हुए ईरान न्यूक्लियर समझौते का बचाव किया। नेतन्याहू जो यूरोपीय मुल्कों के दौरे पर हैं, सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, वो फ्रांस भी गए और बर्तानिया भी जाने वाले हैं। दौरा शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ ईरान पर बात करने के लिए यूरोप जा रहे हैं। एंजेला मर्केल ने इस मौके पर कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मजीद शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जर्मनी और इसराइल इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के तरीकों के ताल्लुक से दोनों मुल्कों की राय अलग अलग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को इसराइल की तरफ से दी जाने वाली मालूमात की बुनियाद पर भी काम करना चाहिए। पिछले महीने नेतन्याहू ने टेलीविजन पर एक प्रेजेंटेशन देते हुए ईरान पर इल्जाम लगाया था कि वो न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हाल ही में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी इल्जाम लगाया था कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसराइल ने कहा है कि अगर ईरान यूरेनियम को अफजूदा करता है तो उसके खिलाफ तमाम मुल्कों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। इसराइल के इंटेलिजेंस वजीर इसराइल काट्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान एक बार फिर आला सतह पर यूरेनियम को अफजूदा कर रहा है और तमाम इत्तेहादी मुल्कों को ईरान के खिलाफ एक बयान जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर ईरान नहीं झुकेगा तो उसके खिलाफ एक फौजी इत्तेहाद बनाया जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिका और मगरबी मुल्कों के लीडर्स को साफ और दो टोक बयान जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में अरबों और इसराइल को मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कतर ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर सऊदी अरब की तरफ से हमले की धमकियों को रद्द कर दिया है। कतर के वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि यह फौजी सामान खरीदने का फैसला एक खुद मुख्ताराना फैसला है। वजीर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब की धमकियां आलमी कानून और आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अल सानी ने अल जजीरा चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यह कतर की खुद मुख्तारी का मामला है और किसी भी मुल्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाल ही में सऊदी अरब के शाह सलमान ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को एक खत लिखते हुए S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीदी के ताल्लुक से बातचीत पर फिक्रमंदी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि इस डील से सऊदी अरब की सिक्योरिटी और मफादात को खतरा होगा और जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब इसके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई करेगा, जिनमें फौजी एक्शन भी शामिल है। कतर के वजीर ने कहा कि इस खत का कोई जवाब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कतर से सऊदी अरब को कोई खतरा नहीं है और ये धमकियां GCC चार्टर की भी खिलाफ वर्जियां हैं। अलसानी ने कहा कि कतर फिलहाल फ्रांस की हुकूमत से इस खत के बारे में तफसीलात जानने की कोशिश कर रहा है। मंगल को सऊदी इत्तेहाद और कतर के दरमियान बहरान का ठीक 1 साल पूरा हो गया। सऊदी अरब, बहरीन, UAE और इजिप्ट ने 1 साल पहले कतर के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे। ये कई बरसों में खलीजी मुल्कों का सबसे बड़ा सिफारती बहरान है। सऊदी इत्तेहाद ने कतर पर दहशतगर्दी की मदद का इल्जाम लगाया था और यह भी कहा था कि वो सऊदी अरब के मुखालिफ ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात बना रहा है। बाद में सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों ने कतर की जमीनी, समंदरी और हवाई नाकाबंदी कर दी थी, जो अब तक जारी है। कतर दहशतगर्दी के इल्जामात को रद्द करता रहा है। कतर का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात कतर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब की यह धमकी सही है तो कतर कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हम कोई आलमी कानून नहीं तोड़ रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या कतर रशिया के साथ फौजी सामान खरीदेगा, अलसानी ने कहा कि फिलहाल तमाम रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि हम हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएंगे। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने कहा है कि हज और उम्रा अदा करने के लिए आने वाले कतरी शहरियों का सऊदी अरब में इस्तकबाल किया जाएगा। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल फरासित। इस खबरनामे में हम आपके लिए दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान ने सुप्रीम लीडर के हुक्म पर न्यूक्लियर सरगर्मियां तेज कर दी, यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ाई जाएगी। खामनाई ने कहा दुश्मन पर भरोसा नहीं कर सकते, एक हमला होगा तो 10 हमले करेंगे। ईरान के ऐलान पर हैरत नहीं हुई, नेतन्याहू का ट्वीट, कहा न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना होगा। नेतन्याहू जर्मनी के बाद फ्रांस पहुंचे, इस्राइल ने कहा तमाम मुल्क ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनाएं। जीसीसी बहरान का 1 साल पूरा, कतर ने सऊदी अरब की धमकियां रद्द कर दी, कहा आजादी से फैसले करेंगे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने नए वजीर आजम को मुकर्रर किया, कहा हुकूमत नाजायज टैक्स ना लगाए। ग्वाटेमाला में आतिश फिशां फटने से मरने वालों की तादाद 69 हो गई, मुल्क भर में सोग। सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की गई तो सख्त जवाब देंगे, पाकिस्तान और मिलिटेंट्स को निर्मला सीतारमण की वार्निंग। सुनंदा पुष्कर केस में शशि थरूर को मुलजिम की हैसियत से तलब किया गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि सीरिया के रक्का में पिछले साल अमरीकी इत्तेहाद के हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। ये हमले पिछले साल के दौरान किए गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में ये बात कही। इस रिपोर्ट में रक्का के मुतासरा खानदानों के इंटरव्यूज शामिल हैं। अमेरिका और तुर्की ने सीरिया के मनबिज शहर के ताल्लुक से एक रोड मैप से इत्तेफाक किया, जिसके तहत अमेरिका की ताईद रखने वाले कुर्द फाइटर्स को आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद कावुसोगलू और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के दरमियान मुलाकात के बाद एक बयान जारी करते हुए ये बात कही गई। सऊदी इत्तेहाद ने इल्जाम लगाया कि यमन की हुदैदा बंदरगाह और आसपास के इलाकों में अलहूसी बागी शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब की ताईद रखने वाली फौजें हुदैदा के करीब पहुंच गई हैं, जहां अलहूसियों का कंट्रोल है। सऊदी अरब के शाह सलमान रमजान का आखिरी दाह मक्का में गुजारने के लिए मुकद्दस शहर पहुंच गए। मक्का के गवर्नर प्रिंस खालिद अल फैसल ने उनका इस्तकबाल किया। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना भी जुर्म बन गया है। पता चला है कि इस्राएली फौज ने मस्जिद अक्सा में इफ्तारी से पहले ऊंची आवाज में कुरान पढ़ने पर कम से कम 15 फलस्तीनी रोजेदारों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत को नाजायज टैक्स नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने वजीर आजम हानी अल मुल्की के इस्तीफे के बाद ये बात बताई। कुछ दिनों के एहतजाज के बाद वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा था। लोग कीमतों में इजाफे और नए टैक्स बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने मुल्क के टैक्स निजाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों पर जोर दिया और कहा कि वो टैक्स कानून के सिलसिले में बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने नए वजीरों से खिताब करते हुए ये बात कही। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि जॉर्डन की नई हुकूमत को नाजायज टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए और गरीबों और अमीरों की आमदनी के दरमियान एक बैलेंस पैदा करना चाहिए। शाह अब्दुल्ला ने उमर अल दराज को नई हुकूमत की क़यादत के लिए मुकर्रर किया। शाही महल की तरफ से जारी एक बयान में यह बात कही गई। जॉर्डन की पिछली हुकूमत ने आलमी मौशी इदारों की शर्तों के मुताबिक बाज़ इस्लाहात लाई थी, जिनसे अवाम नाराज थे। जॉर्डन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। जॉर्डन का दारुल हुकूमत अम्मान अरब का सबसे महंगा शहर समझा जाता है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की बीवी से करप्शन के केस के सिलसिले में पूछताछ की गई। रूसा मंसूर एंटी करप्शन कमीशन के हेडक्वार्टर के सामने पेश हुई। उन्हें जुमे को हिदायत दी गई थी कि वो मंगल को हेडक्वार्टर में पेश हों। उन्होंने नजीब रज़ाक के बैंक खाते में एक खुसूसी फंड से $10 मिलियन से ज्यादा की रकम की मुंतकिली के बारे में सवालों का जवाब दिया। अफ्रीका के मुल्क नाइजर में एक बम धमाके में कम से कम 9 लोग हलाक हो गए। ये वाकया नाइजीरिया की सरहद के करीब पेश आया। बाज लोग जख्मी भी हुए। फौरी तौर पर किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन इस इलाके में बोको हराम तंजीम काफी सरगर्म है।
ग्वाटेमाला में आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ने के हादसे में मरने वालों की तादाद कम से कम 69 हो गई है। यह 100 साल से ज्यादा अरसे में सेंट्रल अमेरिका के इस मुल्क में इस तरह का सबसे भयानक सानिहा है। ग्वाटेमाला के सदर जिमी मोरालेस ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया। कम से कम 3000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत के केस में उनके शौहर और कांग्रेस लीडर शशि थरूर को 7 जुलाई को मुलजिम की हैसियत से तलब किया है। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली की एक लग्जरी होटल में अपने रूम में मुर्दा पाई गई थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने चार्जशीट का नोट लेते हुए कहा कि शशि थरूर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई बुनियादें हैं। पुलिस ने तकरीबन 3000 सफ़ों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें शशि थरूर को अकेला मुलजिम बनाया गया और इल्जाम लगाया गया कि वो अपनी बीवी पर जुल्म करते थे। शशि थरूर ने इस चार्जशीट को नाकाबिले यकीन करार दिया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि शशि थरूर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चल सकता है। वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण ने कहा कि रमजान सीज फायर के दौरान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब दिया जाएगा। साउथ ब्लॉक ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरहदों की हिफाजत करना वज़ारत दिफा की जिम्मेदारी है और हमसे छेड़खानी की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हालिया अरसे में इंडिया पाकिस्तान सरहद पर जंगबंदी की कई खिलाफ वर्जियां हुई और श्रीनगर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के वाकयात पेश आए। सीतारमण ने कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत के इम्कान से इनकार करते हुए ये बात कही। गोवा के आर्च बिशप ने कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत और दस्तूर खतरे में है। हाल ही में दिल्ली के आर्च बिशप ने भी ऐसा ही बयान दिया था और ईसाइयों से कहा था कि वो मुल्क के हालात को सुधारने के लिए खुसूसी इबादतें करें और व्रत रखें, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया था। इस दौरान गोवा के आर्च बिशप के बयान पर बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बिशप को वेटिकन भेज देना चाहिए। कर्नाटक कैबिनेट में 4 शंबे को नए वजीर हलफ ले सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल वजीरों की तादाद 8 हो सकती है। हाल ही में एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस की तायद से चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया था। कांग्रेस लीडर परमेश्वरा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली। कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान वजारतों की तकसीम के बारे में बाज मसाइल पाए जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए बातचीत जारी है। मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम ओहदेदारों ने बताया कि मानसून आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। मौसम ओहदेदारों का कहना है कि इस साल मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। नॉर्थ ईस्ट की रियासत मिजोरम में चट्टानें खिसकने के वाकयात में 10 लोग हलाक हो गए। मिजोरम के बाज़ हिस्सों में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके दौरान चट्टानें खिसकने से एक इमारत जद में आ गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान ने सुप्रीम लीडर के हुक्म पर न्यूक्लियर सरगर्मियां तेज कर दी। यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ाई जाएगी। खामनाई ने कहा दुश्मन पर भरोसा नहीं कर सकते, एक हमला होगा तो 10 हमले करेंगे। ईरान के ऐलान पर हैरत नहीं हुई। नेतन्याहू का ट्वीट, कहा न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना होगा। नेतन्याहू जर्मनी के बाद फ्रांस पहुंचे। इस्राएल ने कहा तमाम मुल्क ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनाएं। जीसीसी बहरान का 1 साल पूरा। कतर ने सऊदी अरब की धमकियां रद्द कर दी, कहा आजादी से फैसले करेंगे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने नए वजीर आजम को मुकर्रर किया, कहा हुकूमत नाजायज टैक्स ना लगाए। ग्वाटेमाला में आतिशफिशा फटने से मरने वालों की तादाद 69 हो गई। मुल्क भर में सोग। सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की गई तो सख्त जवाब देंगे। पाकिस्तान और मिलिटेंट्स को निर्मला सीतारमण की वार्निंग। सुनंदा पुष्कर केस में शशि थरूर को मुलजिम की हैसियत से तलब किया गया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।